माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल है। मैं बालूजी आपको इजाजत दूंगा, मैं सबको बोलने का अवसर दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर केवल प्रश्नकाल होता है और सभी माननीय सदस्यों से मेरा हमेशा आग्रह रहा है कि प्रश्नकाल के अंदर सहयोग करें। माननीय सदस्य प्रश्न पूछता है, नीतियों पर, कार्यक्रमों पर, अपने क्षेत्र की आकांक्षाओं पर चर्चा करना चाहता है, सरकार से जवाबदेही मांगता है और आप प्रश्नकाल में बाधित करते हैं, ये उचित नहीं है। मैंने कल भी बीएससी की बैठक में सभी दलों से आग्रह किया था कि संसद लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच है, जो चर्चा संवाद के लिए, जहां 140 करोड़ लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनकी चुनौतियां, कुछ नीतियों और कुछ विधेयकों पर चर्चा होती है। इसलिए ये नारेबाजी करने का मंच नहीं है, तथ्य लेकर आने का मंच नहीं है। लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए, इन्हीं चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। नारेबाजी और तथ्यों से हम लोगों की अपेक्षा, आकांक्षा पूरी नहीं कर पाएंगे। मेरा आग्रह आपसे, मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि आप प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं, मैं सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। चलिए, माननीय सदन की कार्रवाई। From the soul of India, that is saying under no circumstances are we going to become your unbhakt. Under no circumstances are you going to define our future. Under no circumstances are we going to listen. And this is a beautiful expression. The amazing thing to me, the amazing, fascinating thing to me is that the parents of these children, जब मैदान में जाओगे तब मालूम पड़ेगा, भागते हुए रास्ता नहीं मिलेगा। चुनाव में जब जाएंगे तब मालूम पड़ेगा, मातृशक्ति हिसाब मांगेगी। मान्यवर, यहाँ कुछ सदस्यों ने पर कुछ सदस्यों ने मैं बताता हूं भाई साहब, मान्यवर, यहां पर कुछ सदस्यों ने दूसरी भ्रांति फैलाई कि मुस्लिम महिलाओं को भी आरक्षण। बैंकों का स्वास्थ्य सुधरा, लगातार सुधरा। अभी भी पहले अखिलेश बैठे हैं तो पहले उनकी बात करूं ना, पहली बेंच पर बैठे देखो। मान्यवर, अनुदान की मांगे 26-27 के बारे में संबंधित संसदीय स्थायी समिति के 38वें 17वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं। धन्यवाद। श्रीमती Anupriya Patel ji to move a motion for election of 7 members to the All India Institutes of Medical Sciences. Chairman sir, on behalf of my senior colleague Shri Jagat Prakash Nadda ji, I rise to move that in pursuance of section 4G read with section 6(1) of the All India Institute of Medical Sciences Act 1956 as amended by the All India Institute of Medical Sciences Amendment Act 2012, this House do proceed to elect in such a manner as directed by the Chairman 6 members from amongst the members of the House to be the members of the Institute bodies, that is 1 each in the All India Institute of Medical Sciences at Avantipura,
Batinda, Bhopal, Guwahati, Vijaypur and Madurai, and that in pursuance of Section 4G, read with Section 6(3) of the AIMS Act 1956 as amended by the AIMS Amendment Act 2012, this House to proceed to elect in such a manner as directed by the Chairman, one member from amongst the members of the House to be a member of AIMS Jodhpur in the vacancy caused due to the retirement of Shri Rajendra Gehlot from the membership of Rajya Sabha on 22nd June 2026, subject to the provisions of the Act. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Matters now raised with permission. Now I will call LOP, but you should listen to the other side also. That is what is democracy. Don't instruct me. I will call LOP. Let LOP speak. Then I am coming. Wilson, you go back. I will come back to you later. If everybody is shouting, how I can call anyone? Now, LOP. शिवाजी, you go back. I will call you. After him, I will call you. मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, By shouting, I am not going to call you. जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और उसमें जो बहुमूल्य भेंटों, नगद दान, जमीन खरीद और प्रबंधन को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था की विषय है। इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया है। प्रधानमंत्री ने खुद संसद में ट्रस्ट के गठबंधन की घोषणा की और सरकार ने 70 एकड़ से अधिक भूमि ट्रस्ट को सौंपी और भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री की इस प्रक्रिया का चेहरा बने तो जवाब देने से बचा नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री के सदन में बताइए, ईडी, सीबीआई और अन्य केंद्रीय जांच ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन ये मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं, तो दूसरा का बात सुनता नहीं है। आप खुद ही बोलना चाहते हैं। सर, आप ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। ये हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं। ये नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। हाउस सबका है, ये लीडर ऑफ अपोजिशन का सिर्फ हाउस नहीं है। सर, इसको और परमिशन नहीं मिलना चाहिए। Now, Shivaji, सर, you ask your members to go back to their seat. I am not always, I am not going to allow anyone. sir, freedom of expression has ensured in the Constitution, sir, is not implemented in